یہ جو آپ نعرہ سن رہے تھے، تو ہی کے امی کے رضاکار رضاکار، کی بولچے سائرہ چار سائرہ چار، اس کا مطلب ہے میں اور تو کون، رضاکار رضاکار، ایسا کس نے کہا؟ ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر۔ بنگلہ دیش جیسے ڈیموکریٹک دیش میں حسینہ گورنمنٹ کی پولیس اور آرمڈ فورسز کیسے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹرز پہ گولیاں چلا سکتی ہیں؟ ہیلی کاپٹر سے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹر کو کیسے مار گرا سکتی ہیں؟ اسٹوڈنٹ آرگنائزر کو کڈنیپ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہیں ٹارچر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ 9,000 سے زیادہ پروٹیسٹرز جیل میں ہیں، 20,000 سے زیادہ زخمی ہیں اور 200 سے زیادہ مر چکے ہیں۔ اگر ان آفیشلی دیکھیں تو 1000 سے زیادہ لوگ اس وقت مر چکے ہیں اور شیخ حسینہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ بے شک ڈکٹیٹر جتنا بھی طاقتور ہو یا جتنا بھی ویل کنیکٹڈ ہو، اس کا نتیجہ 3 ہی طریقوں سے ہوتا ہے۔ یا تو عوام اسے لٹکا دیتی ہے، یا ڈکٹیٹر خوش قسمت ہوتا ہے، یا پھر ہوتی ہے تو اسے ملک کو چھوڑ کر بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے، اور تیسرا ہٹلر جیسا انجام ہوتا ہے۔ بہرحال مسز حسینہ دوسری کیٹیگری میں آتی ہیں۔ شیخ حسینہ 15 سال کا راج کرنے کے بعد بنگلہ دیش سے فرار ہوتی ہیں۔ پہلے تو انڈیا میں پناہ لینے کا پروگرام تھا، لیکن پھر پروگرام چینج ہو گیا اور لندن کی طرف حسینہ جی پرواز کر رہی ہیں۔ ریزیڈنس سے نکلنے کے ٹھیک بعد پروٹیسٹرز نے ان کے گھر میں انٹری کر لی اور ان کے عالیشان گھر کو لوٹ لیا۔ وہاں کھانا بھی کھایا، یہاں تک کہ ان کے ابو جان کو بھی نہ چھوڑا، جو کہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ فادر ہیں۔ ان کی مورتی پر بھی لوگوں نے اپنا غصہ نکالا۔ اسٹوڈنٹ کی آواز کو ابھی تک دبایا نہیں جا سکا۔ بنگلہ دیش میں چل کیا رہا ہے؟ آخر اتنی آگ کیوں لگی؟ بنگلہ دیش کا کوٹا سسٹم ہے کیا، اور اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے 2 ہفتوں میں بنگلہ دیش کی پولیس فورس نے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹر کو بیچ سڑک میں گولی چلا کر مار ڈالا۔ پولیس گاڑیوں سے اسٹوڈنٹ کو کچل ڈالا۔ یہ ہیلی کاپٹر کوئی اینٹی ٹیرر آپریشن نہیں، یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کی چھت پر ہیلی کاپٹر سے بنگلہ دیش کی اسپیشل فورسز انٹر ہو رہی ہیں۔ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جیسے شیخ حسینہ کی سرکار نے ملک بھر کی نوجوان نسل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہو۔ اس واقعے کو بنگلہ دیش کی تاریخ میں ون آف دا ورسٹ ایپیسوڈ آف سلاٹر کہا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں 209 جانیں تو آفیشلی گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ زخمی ہیں، پورے بنگلہ دیش میں کرفیو جاری ہے۔ اتنا خوفناک احتجاج آج سے پہلے بنگلہ دیش کی پوری ہسٹری میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس احتجاج نے تو اپنے آپ ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ پچھلے 15 سال سے حکومت کرنے والی شیخ حسینہ کی سرکار کے تختے الٹ کر رکھ دیے ہیں۔ بنگلہ دیش کا یوتھ پروٹیسٹ کر رہا ہے حکومت کے انٹروڈیوس کیے گئے کوٹا سسٹم کے خلاف۔ وہ کوٹا سسٹم جس کے تحت 56% نوکریاں بنگلہ دیش کے پبلک سیکٹر میں ریزروڈ ہیں، یعنی فکس کر دی گئی ہیں الگ الگ سیکشنز آف سوسائٹی کے لیے۔ اس کا مطلب صرف 44% ایسی نوکریاں ہیں جہاں صرف میرٹ کی بیس پہ نوکری مل سکتی ہے۔ اس کوٹا سسٹم میں میجورٹی ریزرویشن فریڈم فائٹرز کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ فریڈم فائٹرز کا مطلب وہ لوگ جو 1971 کی جنگ میں لڑے تھے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ہسٹری جاننا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کیسے بنا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس کو کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، بس مختصر اتنا یاد رکھیے۔ بنگلہ دیش 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ مغربی اور مشرقی پاکستان میں 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ اس وقت اسے ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، اور آج موجودہ پاکستان اس کو ویسٹ یعنی مغربی پاکستان کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مشرقی پاکستان کے خلاف قومی اور سماجی اختلاف رکھا جاتا تھا۔ میجورٹی لوگ مشرقی پاکستان میں بنگالی بولتے تھے، 10% سے بھی کم لوگ اردو بولتے تھے، لیکن پھر بھی ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان میں اردو نافذ کرنا چاہی۔ اس کے علاوہ اکنامک ڈسکریمنیشن یعنی معاشی طور پہ بھی ایسٹ پاکستان کے بنیادی حقوق سے انہیں محروم رکھا گیا۔ 59% ایکسپورٹ مشرقی پاکستان سے جاتی تھی، لیکن صرف 25% انڈسٹریل انویسٹمنٹ ایسٹ پاکستان کے پاس آتی تھی۔ نومبر 1970 میں جب بھولا سائیکلون آیا، ایسٹیمیٹڈ 3 لاکھ لوگ مارے گئے، لیکن ویسٹ پاکستان نے کچھ زیادہ ایفرٹ نہیں کی۔ 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی
ईस्ट पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई। साल 1970 के इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थीं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थीं। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पार्टीज़ को वोट किए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी वोट्स गए अवामी लीग को, जिसे लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इस इलेक्शन का नतीजा ये होना चाहिए था कि अवामी लीग दोनों मशरकी और मगरबी पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त जनरल याहिया खान मुजीबुर रहमान के वज़ीर आज़म बनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। इन सब हालात में मशरकी पाकिस्तान पर मार्शल लॉ नाफिज किया गया। इसके जवाब में मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की प्रोटेस्ट के तौर पर। इसी वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने जंग का ऐलान कर दिया। बजाय इसके कि इतने नाजुक मसले को जंग की शक्ल देना, उस वक्त चाहिए तो ये था कि हालात को पुरअमन तरीके से हैंडल करते। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया, लाखों लोगों की जान गई, तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने इंडिया में पनाह ली। इसी के बाद ही था कि हमें 1971 की लिबरेशन वॉर देखने को मिली। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. ये वही जंग थी जब इंडिया ने बांग्लादेश की मदद की। इस जंग में बिलाखिर पाकिस्तान को शिकस्त हुई और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। ईस्ट पाकिस्तान में जिन्होंने आज़ादी की ये जंग लड़ी, इन्हीं को ही फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। यही फ्रीडम फाइटर्स रेलिवेंट हैं आज के इस कोटा सिस्टम में। बांग्लादेश की 30% जॉब्स को रिजर्व यानी फिक्स किया गया है इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशन है, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% कोटा है एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% कोटा है उन लोगों के लिए जिन्हें जिस्मानी तौर पर कोई मजदूरी हो। इन सब को टोटल करें तो 56% बनता है और इसी 56% में से 30% जो कि सीधा सीधा उन लोगों के पोते पोतियों के लिए है जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी। इस आर्टिकल को देखिए। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3rd ईयर स्टूडेंट फहीम फारूकी, जो कि प्रोटेस्टर भी हैं, इनका कहना है बेसिकली ये प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं एथनिक और डिसेबिलिटी वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशन यानी कोटा सिस्टम खत्म कर दिए जाए। यहाँ फ्रीडम फाइटर्स वाला कोटा सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस कोटा सिस्टम की शुरुआत 1972 में ही कर दी गई। बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विस ने उस साल ऑर्डर इशू किया था कि 1971 में जंग लड़ने वालों यानी फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने जंग लड़ने की हिम्मत रखी और अपनी जानों को दांव पर लगाकर जंग लड़ी, उन लोगों के लिए 30% कोटा रखा गया, यानी 30% गवर्नमेंट जॉब्स इन लोगों के लिए फिक्स कर दी गई। इस आइन में साफ साफ तौर पर यह कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, न कि उनके पोते पोतियों के लिए। बाद में जाकर 1997 में इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की गई, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये 30% वाला कोटा बढ़ा दिया गया और 2010 में इस आइन में फिर तब्दीलियां की गईं और ये तय हुआ कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये 30% वाला कोटा होना चाहिए। एट द एंड ये नतीजा निकला कि पूरे बांग्लादेश में सारे कोटा सिस्टम की परसेंटेज 56% पर पहुंच गई। 2010 के इसके रैंड चिल्ड्रन के फैसले के बाद 2013 में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट भी हुई। पाकिस्तान में जिस तरह CSS का एग्ज़ाम होता है, इसी तरह बांग्लादेश में है BPSC का एग्ज़ाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तकरीबन 4 लाख ग्रेजुएट्स एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, जिनमें से सिर्फ 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। काफ़ी ख़राब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। 2018 में बांग्लादेश की यूथ ने कोटा सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए एहतजाज किया। उस वक्त भी काफ़ी ख़राब हालात देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच जो इसके हक में हैं और जो इसके खिलाफ हैं। प्रेशर में आकर बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में सर्कुलर जारी किया, 1st और 2nd क्लास के लिए ये कोटा हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर ख़त्म हो गई होती। कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने कोर्ट में दरख्वास्त डाली इस कोटा सिस्टम को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, और 5 जून 2024 को हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। जो फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बेसिकली यही रीज़न है कि हमें मुल्क भर में
काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला। स्टूडेंट्स का कहना है कि यह कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर कानूनी है। ये सही भी है क्योंकि आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली नस्ल के लिए ये कोटा सिस्टम एप्लीकेबल होगा। और वैसे भी इसका क्या तुक बनता है। फ्रीडम फाइटर्स को 30% जॉब कोटा देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी, लेकिन उनके पोते पोतियों तक को ये कोटा सिस्टम दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे। स्टूडेंट और टीचर्स के अलावा अपोजिशन पार्टीज भी इस एहतजाज का हिस्सा बन जाते हैं, जैसा कि BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को काबू करने के लिए 7000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ये खबर आती है कि सरकार प्रोटेस्टर्स के खिलाफ थ्रेट और वायलेंस इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के दरमियान झगड़ा देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे ये छात्र लीग क्या है। बेसिकली अवामी लीग के कट्टर सपोर्टर्स जो कि आर्म्ड भी हैं, इन्होंने स्टूडेंट के खिलाफ असले का इस्तेमाल किया। अभी तक हम आर्म्ड फोर्सेस सुन रहे थे, लेकिन फिर शेख हसीना की पार्टी के कट्टर सपोर्टर्स ने भी मैदान में एंट्री की। यहीं से हालात बहुत संगीन हो गए। सिर्फ एक संडे को 100 से ज्यादा डेथ हो जाती है। अवाम में इतना गुस्सा उभर पड़ता है। इसके बाद सारे मुल्क भर से प्रोटेस्टर्स जमा होते हैं और ढाका की तरफ मूवमेंट करते हैं और सब प्रोटेस्टर की बस एक ही आवाज़ होती है, हसीना मुल्क को छोड़कर जाएगी। सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्ट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का फ़ोन बर्बाद नहीं जाने देंगे। इस प्रोटेस्ट में लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं और अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटा के किसी मामले में इंटरफेयर ना करे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स को हुकूमत के किए गए इकदामात पर शक रहता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक लफ्ज तक नहीं बोला जो कुछ उनके पार्टी एक्टिविस्ट ने किया था। दूसरी तरफ से शेख हसीना बड़े अजीब किस्म की स्टेटमेंट देती हैं। वो बातों को घुमा फिरा के कहती हैं, प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर से? अगर फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन पोते पोतियों को कोटे का फायदा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को कोटे के बेनिफिट्स दिए जाएंगे? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি পুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতি পুতিরা পাবে? आखिर ये रजाकार लफ्ज क्या है? रजाकार एक पर्शियन लफ्ज है जिसका मतलब है हेल्पर या वॉलंटियर। लेकिन 1971 की जंग में रजाकार बाहिनी एक ग्रुप था जो कि पाकिस्तान की आर्मी का साथ दे रहा था। उस वक्त भी कुछ लोग बांग्लादेश में पाकिस्तान को पसंद करते थे और उन्होंने जंग में भी पाकिस्तान का साथ दिया था। दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी था जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जंग कर रहा था। इस रजाकार बाहिनी में तकरीबन 50,000 लोग थे जिन्होंने मगरबी पाकिस्तान की मदद की। 1973 में जब मुजीबुर रहमान की हुकूमत बनी तो इन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने और इन्हें सजा देने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट निकरा मोके हाजी नोट करती हैं कि तकरीबन 37,000 रजाकार लोगों को ढूंढ लिया जाता है। इनमें से 26,000 को मुआफ कर दिया गया और बाकियों को सजा दी गई। कुछ ट्रायल्स तो इतनी लंबी चलती रही कि कुछ रजाकार ग्रुप के 6 लोगों को 2022 में भी फांसी दी गई। तो पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं कि रजाकार का लफ्ज़ बांग्लादेश में गद्दार या एंटी नेशनल समझा जाता है और अगर कोई एहतजाज कर रहा है इस कोटा सिस्टम के खिलाफ तो क्या उन्हें गद्दार या एंटी नेशनल कहना सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं है। सही बात तो ये है कि जैसे अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड अबे ने लिखा था, अ पैट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। एक सच्चा हुब्बे वतन अपनी सरकार से भी अपने मुल्क को डिफेंड करता है। अगर इस सारे मसले को गहराई से देखा जाए तो असल वजह कोटा सिस्टम नहीं बल्कि कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज तो बस एक सिम्टम या एक बहाना है। जो असल बुनियादी वजह नजर आ रही है वो बेरोजगारी है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर फरहाद हुसैन ने बताया कि 5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। अगर इन्हें फिलअप भी किया जाए तो भी काफी नहीं होगा। बांग्लादेश ब्यूरो का स्टैटिक्स डाटा बताता है कि 18 से 19 लाख लोग जॉब इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। 17 करोड़ लोगों का मुल्क है और उसमें से जो काम करने वाले लोग हैं तकरीबन 2/3 यानी 11 करोड़ के आसपास। इन 11 करोड़ लोगों में से सीधा 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।
بنگلہ دیش میں اکانومی کی حالت بھی کافی خراب ہے. فورن ایکسچینج ریزرو کی حالات بھی کافی خراب جا رہے ہیں. بنگلہ دیش نے 2022 میں مانیٹری فنڈ سے مدد مانگی اپنے فورن ایکسچینج ریزرو کو ریبلڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں انفلیشن ریٹ بھی بہت ہائی ہے 9.72% پر. لوگوں کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. کوٹا سسٹم میں تبدیلی یا اس کا ختم ہونا تو صرف پہلا سولوشن ہوگا. اگر لانگ ٹرم میں اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو لوگوں کے لیے حکومت کو جابز ریلیز کرنا ہوں گی. ایٹ دا اینڈ ہم تو بس بنگلہ دیش کی بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیوں ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.